Hello guys, today we'll discuss about the next concept of microeconomics, that is production possibility curve. It is also known as the transformation curve. This is the curve which shows how we will use our available resources to produce the different goods in the economy. So moving towards the concept, first of all we will find out what are the assumptions which are taken to form or frame this curve. Here are the assumptions. The first assumption is there are two goods to produce in the economy. That means we will take only the production of two goods in the economy, or we have to produce only two goods in the economy. The next assumption is resources are limited. As we all know that, or we have already discussed about that, every economy do have limited resources. The next assumption is the technology will remain constant. That means there will be no improvement or advancement in the machineries which are being used or utilized in the production process. मीन्स कोई भी टेक्निकल एडवांसमेंट इकोनॉमी में नहीं होगी. जो भी मशीन्स अवेलेबल हैं उन्हीं के साथ प्रोडक्शन किया जाएगा. सो दीज आर द अजम्पशंस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ पीपीसी. पीपीसी होता क्या है एग्जैक्टली? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. So it is a curve which shows the maximum possible combinations of two goods which can be produced with the given resources. Okay, so we have used some of our assumptions while defining the production possibility curve. The main thing is it shows the maximum possible combination. Okay, maximum possible combination, as the name suggests, production possibility curve, only the possible combinations are shown through PPC. जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ये पीपीसी हमें दिखाएगा. ओके, और मैक्सिमम होंगे वो. दैट मीन्स कि गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से जो भी गुड्स हम या जितनी भी यूनिट्स हम दोनों गुड्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उतनी ही अमाउंट या उतनी ही यूनिट्स उस गुड की या उन दोनों गुड्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द अवेलेबल और गिवन रिसोर्सेज. उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन यूनिट्स से ज़्यादा प्रोडक्शन दोनों गुड्स का नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. ओके, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन दोनों गुड्स का, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं कर सकते. एंड रिसोर्सेज चेंज नहीं होंगे, लिमिटेड है वो. एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है. ओके, सो द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विल बी शोन, and as we know that only two goods are to be produced with the given resources. So what is PPC? It is a curve showing the maximum possible combination of two goods which can be produced with the given resources. Now, what are these two goods? These can be anything. In our example, we are taking the goods as wheat and rice. हम मान के चल रहे हैं कि हमने जो प्रोड्यूस करना है वो wheat और rice प्रोड्यूस करना है, एंड हम जो रिसोर्स लेके चल रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, that is land. Okay, here is a point which is needed to be considered. The resource which we are using is not equally efficient to produce both the goods in higher or larger quantity. That means if we are taking land, so and the two goods we have to produce, these are wheat and rice. That means the land or the available land which we are using for the production on wheat for wheat and rice is not equally efficient for the production of both the goods. That means it may be possible that the land which we are using is more fertile to produce wheat than rice. मतलब जो हम लैंड बेस या लैंड एरिया लेके चल रहे हैं वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, या वहाँ की जो सॉइल है वो वीट के प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, ज़्यादा फर्टाइल है देन राइस. मतलब वहाँ पे अगर हम राइस प्रोड्यूस करेंगे तो राइस उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना हम वीट प्रोड्यूस कर पाएंगे, बिकॉज लैंड की फर्टिलिटी जो है एरिया टू एरिया वेरी करती है. इस वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया. ठीक है, कि किसी जगह पे कोई किसी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसी के लिए
कोई दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज सॉइल फर्टिलिटी वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। तो मतलब जो हमारा रिसोर्स हम लैंड लेके चल रहे हैं दैट इज़ नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स इन लार्जर क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर हमारा लैंड जो है हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वीट ज़्यादा प्रोडक्शन, उसी सेम एरिया फिक्स्ड रहेगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, तो जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है। सपोज हम 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 5 हेक्टेयर्स के ऊपर अगर हम वीट प्रोड्यूस करेंगे तो सपोज वीट 100 टन्स प्रोड्यूस हो पाएगा, लेकिन उसी 5 हेक्टेयर के ऊपर अगर हम राइस प्रोड्यूस करें कम्प्लीटली तो 100 टन से कम प्रोड्यूस हो पाएगा, क्योंकि हमारा लैंड जो है वो उतना ज़्यादा फर्टाइल राइस के लिए नहीं है। ओके, गॉट द पॉइंट। बिकॉज कि जो फर्टिलिटी है वो वेरी करती है, सेम एज जो रिसोर्स हैं, यहाँ पे लैंड लिया है तो फर्टिलिटी उसकी एफिशिएंसी होगी, कोई दूसरा रिसोर्स लो, लेबर ले लो या मशीन ले लो, तो वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी कुछ और हो सकती है। तो दोनों ही जो रिसोर्सेज हैं, दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हमारा रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिसोर्स हूँ, बीइंग अ टीचर, ह्यूमन रिसोर्स हूँ मैं, तो मैं अगर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। पढ़ा तो सकता होऊंगा, लेकिन उतना अच्छे से, उतना एफिशिएंटली नहीं जितना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशंस विच आर प्रोड्यूस्ड with the help of given resources। दो गुड्स के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज, उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम टेबल की फॉर्म में दिखाएं या टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है, वही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल होता है। तो क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल? इट इज़ द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशंस, उन कॉम्बिनेशंस का टेबुलर प्रेजेंटेशंस हैं विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल हमें दिख रही है, व्हीट एंड राइस, हम दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने गुड्स ली हैं, व्हीट एंड राइस। सेकंड कॉलम में हमारे पास क्वांटिटीज आती हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं टन्स में हम मेजर कर रहे हैं इनको। सो इन द सेकंड कॉलम व्हीट इज प्रोड्यूस्ड 100 tons और 100 tons of wheat is produced, whereas rice is 0 tons। that means हमने यहाँ पे राइस बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं किया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, द थर्ड कॉलम, 90 tons of wheat is being produced and the rice 10 tons of rice are being produced। ठीक है, तो 90 tons हमने यहाँ पे wheat प्रोड्यूस किया है और 10 tons राइस। मूविंग फॉरवर्ड 70 tons of wheat and 20 tons of rice, 40 tons of wheat and 30 tons of rice। हमने यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया कि सेकेंड कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, राइस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। दैट मीन्स लैंड एज अ रिसोर्स पूरा का पूरा जो है यूटिलाइज हो रहा था व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, राइस का हमने बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं किया था। जैसे जैसे हम फॉरवर्ड जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, हम राइस का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो राइस के प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्स चाहिए होगा। दैट मीन्स जो लैंड है वो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया राइस के प्रोडक्शन के लिए, लैंड का कुछ एरिया। तो हमने वो एरिया कहाँ से लिया? लैंड बीइंग द फिक्स्ड रिसोर्स, हमने वो एरिया कहाँ से लिया? व्हीट के प्रोडक्शन से निकाल के हम वहाँ पे राइस प्रोडक्शन करने लग गए हैं। ठीक है, तो व्हीट का प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि हमने व्हीट से रिसोर्सेज निकाल के राइस में लगा दिए हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न दिख रहा है हमें कि अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे होंगे तो दूसरे का घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, इसी डेटा को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है नीचे, दैट इज़ द कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी ग्राफ की हेल्प से हमने ओ एक्स एक्सिस पे, जैसे हमारे पास दो एक्सिस हैं, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस पे हमने राइस का प्रोडक्शन दिखाया है एंड ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने व्हीट का प्रोडक्शन दिखाया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो डेटा टेबल में है वही लिया है, राइस का प्रोडक्शन 0 to 10, 20, 30 एंड 40 इंक्रीज हो रहा है एंड व्हीट का प्रोडक्शन जो है हमारा, व्हीट जो है 100, 90, 70, 40 एंड 0। ठीक है, सो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट ए हमें दिखाई दे रहा है। पॉइंट ए पे व्हीट का प्रोडक्शन है ओ वाई एक्सिस पे 100। टेबल में देखो, जब हम व्हीट का प्रोडक्शन 100 कर रहे थे तो राइस का प्रोडक्शन था 0। तो जब हम पॉइंट ए को ओ एक्स एक्सिस पे टच करेंगे, ओ वाई एक्सिस पे है पॉइंट ए 100 टन्स पे, जब हम इस पॉइंट ए को ओ वाई एक्सिस पे टच करेंगे तो ओ वाई एक्सिस पे ये ओ पॉइंट पे जाके मिलेगा, जिसको हम 0 भी कह सकते हैं। दिस इज पॉइंट ओ। दैट मीन्स जब व्हीट का प्रोडक्शन 100 हो रहा था पॉइंट ए पे, तो हमारा राइस का प्रोडक्शन 0 था।
नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बी, पॉइंट बी पे हमारा वीट का प्रोडक्शन ओवाई एक्सिस पे दिख रहा है 90 टन्स एंड राइस का प्रोडक्शन जो है पॉइंट बी को हमने ओ एक्स एक्सिस पे मिलाया तो हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है वो 10 टन्स। पॉइंट सी वीट का प्रोडक्शन 70 टन्स, राइस का प्रोडक्शन 20 टन्स। पॉइंट डी वीट का प्रोडक्शन 40 टन्स एंड राइस का प्रोडक्शन 30 टन्स। पॉइंट ई, यहाँ पे पॉइंट ई जो है सिर्फ ओ एक्स एक्सिस पे हमें दिख रहा है, पॉइंट ई ओ एक्स एक्सिस पे मिला है। यहाँ पे इस पॉइंट ई को हम ओ वाई एक्सिस पे ले जाएंगे तो ये पॉइंट ओ पे मिलेगा या जीरो पे मिलेगा। दैट मीन्स पॉइंट ई पे सिर्फ राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 40 टन्स और वीट का प्रोडक्शन जीरो हो गया। दैट मीन्स हमने सारी की सारी जो लैंड है वो राइस के प्रोडक्शन में यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, वीट का प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो हमने पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, ध्यान देना, जो पीपीसी है वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उन कॉम्बिनेशंस की, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो कि हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से। और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उन कॉम्बिनेशंस की जो कि हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अवेलेबल रिसोर्सेज से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब हम पीपीसी की हेल्प से अपनी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और एवरी इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स। हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं तो दोनों में से कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन हम करेंगे वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पहले ही ले लिया है कि दो गुड्स हमें प्रोड्यूस करनी है, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। हमने पहले भी डिफाइन किया है इनको, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी इकोनॉमी। या तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही होंगी या कैपिटल, या फिर दोनों प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो कितना कंज्यूमर और कितना कैपिटल, जैसे कि हमने पढ़ा व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी गुड प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और किस क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करेंगे। तो दो गुड्स हैं कंज्यूमर एंड कैपिटल, अगर ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस की जा रही हैं तो किस क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड और किस क्वांटिटी में कैपिटल गुड का प्रोडक्शन होगा। ओके, तो हम यहाँ पे अपने ग्राफ को देखते हैं। हमने ओ वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स ली हैं और ओ एक्स एक्सिस पे हमने कंज्यूमर गुड्स ली हैं। ओके, ओ वाई एक्सिस पे कैपिटल गुड्स एंड ओ एक्स एक्सिस पे कंज्यूमर गुड्स हैं। ओके, पॉइंट है हमारे पास ओ वाई एक्सिस पे ए एंड सी, ओ एक्स एक्सिस पे हमारे हैं बी एंड डी। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ओ ए ऑन ओ वाई एक्सिस, पॉइंट ओ ए ओ वाई एक्सिस पे जो दिखा रहा है कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन, दैट मीन्स इनिशियली हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं ओ ए। अगर इनको क्वांटिफाई करते हैं तो क्वांटिफाई भी कर सकते हो, ए की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 70 80 टन्स वट एवर इट इज़। ठीक है, तो ओ ए इज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। जब हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ओ ए कर रहे हैं तो उस टाइम पे, सेम टाइम पे कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ओ बी ऑन ओ एक्स एक्सिस। कंज्यूमर गुड्स ओ एक्स एक्सिस पे हैं तो ओ ए कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन है और ओ बी कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया ओ ए एंड ओ बी, ओ ए जो कि कैपिटल गुड्स हैं, ओ बी जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास आया ओ ए एंड ओ बी। नाउ अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें कंज्यूमर गुड्स का, ठीक है, ओ बी टू ओ डी, अब हमारे पास कंज्यूमर गुड्स का नया जो अमाउंट आई है वो आई है ओ डी। अब हम ओ बी की बजाय ओ डी प्रोडक्शन कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स का। OD amount of goods are being produced in the economy। अब हमने OD जो गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं, कंज्यूमर गुड्स OD, तो दैट मीन्स हमने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया है तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन रिड्यूस करेंगे क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, हम रिसोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स से निकाल के हमने रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स में शिफ्ट किए, जिस वजह से कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन तो बढ़ गया, दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन घट जाएगा। तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जो कि पहले OA हो रहा था अब हो जाएगा OC। ओके, तो हमने दो कॉम्बिनेशंस लिए कि हम कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनिशियली OA ऑफ कैपिटल एंड OB ऑफ कंज्यूमर। इफ वी डू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम OB टू OD, वी हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो हमारा नया कॉम्बिनेशन आ गया OC एंड OD, OC कैपिटल एंड OD कंज्यूमर गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स वी हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, जो कि हमें पता है इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
दो टेक्निक्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन की, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। हमें पहले डिस्कस किया था कि कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबरर्स एज कम्पेयर टू मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर पावर ज़्यादा यूज़ होगी। So in the graph we can see if we use capital goods, capital intensive technique of production, we can produce more of both the commodities. अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम दोनों ही कमोडिटीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इन द कंट्रास्ट इफ़ यू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, बोथ द कमोडिटीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी। ओके, दोनों का प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि लेबरर्स जो है मशीन से कम एफिशिएंट होते हैं, मशीनें ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन करती हैं, तो मोर ऑफ बोथ द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस या मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। एंड लेबर इंटेंसिव जो कि लेस एफिशिएंट होती है तो लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएगी दोनों ही गुड्स की। एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट करेंगे, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक मेजर प्रॉब्लम जो है शॉर्ट रन में इमर्ज हो सकती है, उभर के आ सकती है, क्योंकि मशीन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लेबरर्स जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की ही प्रॉब्लम रहेगी, लॉन्ग रन में इसको करेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है इफ़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड। ओके, तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट की, कैपिटल गुड्स अगर हम प्रोडक्शन दोनों गुड्स का ज़्यादा करना चाहेंगे तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, अदरवाइज लेबर, या फिर अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। और अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या इकोनॉमीज़ हैं या डेवलपिंग हैं तो वो लेबर पावर ज़्यादा यूज़ करेंगी क्योंकि उनके पास एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्स इनकम लेके चल रहे हैं, तो देर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, जिसकी वजह से रिच एंड पुअर सेक्शंस ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो कर्व में हम देखेंगे अगर रिच ओरिएंटेड इकोनॉमी है, रिच सेक्शंस ज़्यादा हैं इकोनॉमी में, ठीक है, तो इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स ज़्यादा होंगी, सेविंग्स ज़्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इफ़ रिच ओरिएंटेड इकोनॉमी इज़ देयर, more of savings will be there, more investments will be there, as a result production will be higher। तो रिच ओरिएंटेड इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर पुअर ओरिएंटेड इकोनॉमी है या पुअर सेक्शंस हाई है इकोनॉमी में तो उनकी इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स विल बी लो, इफ सेविंग्स आर लो तो इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी लो, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन विल बी लेस देन रिच सेक्शंस। ठीक है, या उन इकोनॉमी से कम प्रोडक्शन होगा जो रिच ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। तो इस तरीके से हमने तीनों ही प्रॉब्लम्स को जो है पीपीसी के थ्रू सॉर्ट आउट किया।